नमस्कार एंड वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। हमारे आसपास कई ऐसी सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन को आसान और खूबसूरत बना रही हैं और वो किसी जीनियस की ही देन है, पर हम उन्हें नहीं जानते। लेकिन इस मंच पर जीनियसेस को डायरेक्ट आपसे मिलवाया जाता है ताकि आगे चलकर उनके आविष्कारों के साथ साथ आप उन्हें भी याद रखें। वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल इंडिया को इंडिया के यंग जीनियसेस से मिलवाने की, ताकि उनकी असाधारण काबिलियत से पूरा देश इंस्पायर हो सके। भारत के कोने कोने से हमने ढूंढ निकाले हैं कई बेमिसाल यंग जीनियस और उनमें से सबसे खास को चुना हमारी अमेजिंग जूरी ने। एक्टर, डांसर एंड पॉलिटिशियन हेमा मालिनी, नेशनल बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद, म्यूजिशियन शंकर महादेवन, ऑथर अमीश त्रिपाठी, अमूल सीईओ डॉक्टर सोढ़ी एंड डायरेक्टर ऑफ DRDO अनिल मिश्रा। अलग अलग फील्ड्स में अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़ चुके ये यंग जीनियसेस अब आ रहे हैं अपनी कहानियां आपके संग बांटने। मैं हूं आनंद नरसिम्हन, आपका होस्ट और इस सफर में आपका सूत्रधार। हमारी आज की पहली जीनियस का मानना है कि नए भविष्य के लिए नया नजरिया जरूरी है और उनकी सोच सही भी है। पर्यावरण के बिगड़ते हालातों को देखकर उन्होंने एक अवार्ड विनिंग सोलर आयन कार्ट का आविष्कार किया, जिसकी वजह से अब उन्हें 2021 के COP26 समिट में आमंत्रित किया गया। ये हैं तिरुवन्नामलाई तमिलनाडु से 15 वर्ष की विनीशा उमाशंकर। The world turns to our sun to power our future. I'm Vinisha Umashankar. I'm 15 years old. I'm the innovator of the solar ironing cart. When I came up with the solar ironing cart, I was barely 12 years old. And the idea came to me when I saw an ironing vendor using charcoal. This happens every day, but I thought it was an overlooked problem. I figured out that charcoal causes so many environmental problems. All of this seemed wrong to me. I did 6 to 7 months of continuous research about the problem, and then after 1 year, I came up with the solar ironing cart. When Vinisha won the Dr. APJ Abdul Kalam Ignite Award, it's quite rare to get because out of 60,000 applicants, only 18 of them they got the award. We were never imagined that we could actually win a national award from a small town. My biggest achievement was to speak in front of all the world leaders at the COP26 summit in Glasgow 2021. I'd like to curb our energy crisis and make the world a better place to live in for our future generations. Hi Vinisha. Hi. Welcome Vinisha. Vanakkam. Come sit. Tell me, this solar iron cart, how did you get this idea? As I started learning more about environmental issues in grade 7 at school, it made me think, is using charcoal to iron that sustainable? So when I went and did research, I figured out that there are so many problems: air pollution, deforestation, respiratory diseases, and all of this leads to climate change. Yeah. Knowing that fact, it made me think that at least I know that it's wrong. I should do something about it. So I went ahead and did some research about how I could improve this and how I could make it more environmentally friendly. And that led me to invent the solar ironing cart. How long did it take? That took me about a whole year to finally finish just the development of the solar ironing cart. My God. अब हम आपको किसी से मिलवाना चाहते हैं. This person is also somebody who's very impressed with you. ये खुद भी किस जीनियस से कम नहीं है. Please welcome the former coach of the Indian men's cricket team, ace commentator and a man who I have great respect for, Ravi Shastri. How are you? Genius? Really good. How are you? Betty? This is Vinisha Umashankar, हमारी young genius. I read her speech, glimpses of it. I saw it when she was there for the COP26. The way she spoke, no stage fright whatsoever. Many, many congratulations. You know what she did there? People keep talking about the future. She brought the future to the present. Fabulous. Thank you so much. And I think that's a really nice way to put that.
bringing the future into the present. Yep. Yeah, but let's look at some of these images. Can you explain to us the solar iron cart? How does it work, Vinisha? So in the solar ironing cart, the top part right there, that's gets where the power. the solar panels are located. And then you see that Indian flag. Yes. If you actually open it, there's a place where you can keep ironed clothes, but Wow. there's also a battery there. That battery stores the extra electricity from the solar panels, but any electricity that is used goes directly to the iron box. Right there is the iron box. So in this process, no electricity is wasted at all. I'm actually working on a new technology for the iron box itself, which will make it even more efficient than it already is. Wow. I attached a cycle because most of the carts I've seen on the road, you have to push them manually. Yeah, so I thought it's better if they can ride the cart instead. Have you patented it? Yes, because I'm 15, I don't technically already own the patent. I have it under a guardian's name. Correct. How can you think of all this at such a tender young age, to be ahead of your time and take all that? Now you can work at it and keep improvising because you own it. It's quite well thought out and it's quite elaborate. So it's not going to come cheap. It's quite expensive relative to how much the ironing vendors can afford, but I actually saved 45,000 after building the prototypes. It does seem like a lot of money to invest in at one time itself. But if you actually see, they spend around 200 rupees every day to get charcoal. And that's expensive if you look at it in the long term. Instead, if you invest in just one solar ironing cart, it lasts you over 25 years with little to no maintenance at all. I actually calculated which is better, how much do you get to save. I think with the solar ironing cart, you only incur about 8 rupees as a profit, but with the charcoal based irons, it's 0.68 something. This is a 30-year-old head sitting on a 15-year-old shoulder. Absolutely. True. इसीलिए आप young genius हैं. But what's your plan? What do you want to do going forward? So going forward for the solar ironing cart is definitely manufacturing. The customers are the ones who will give life to your idea in the first place. But now tell us about this climate summit, COP26. How I got this opportunity was through the Earthshot Prize that's being conducted by the Duke and Duchess of Cambridge. I was fortunate enough to be one of the 15 finalists, and they had invited all the 15 finalists to take part in COP26 happening in Glasgow. COP26 summit मतलब United Nations Climate Change Conference जो ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में 2021 में हुआ था। इस समिट में क्लाइमेट चेंज पर चर्चा करने के लिए दुनिया के सारे बड़े-बड़े लीडर्स आए थे, इंक्लूडिंग हमारे प्रधानमंत्री जी। और ऐसे बड़े मंच पर हमारी इस यंग जीनियस ने अपनी बात रखी, उनको ये मौका मिला, ये अवसर मिला। Were you one of the youngest? Yes, I was 15 and everybody else were like adults having a well-established company. Weren't you nervous? Actually, I was nervous before going on stage, but once I went on stage and got a read of the audience, I was completely fine actually. You know why? She was so confident, self-confident about what she had achieved, what she had invented. In such situations, you actually want that stage. Yeah. And you actually want to start speaking. True. So, Bill Gates, Anand Mahindra, Sadhguru, they all tweeted about you. Shashi Tharoor, Prime Minister Narendra Modi, there's so many others who tweeted about your innovation and what you said and what you did. So at Glasgow, you had a podium with 2 mics and it was written Climate Change Summit COP26. So we've got another podium for you here, but it says Young Genius. A small portion of your speech. Will you say it for us? So you'll give us a small glimpse. Me and my generation will live to see the consequences of our actions today. Yet none of what we discuss today seems practical to me. You are deciding whether or not we have a chance to live in a habitable world, whether or not we are worth fighting for, worth supporting, and worth caring. Many of my generation are angry and frustrated with leaders who have made empty promises and failed to deliver. And we have every right to be angry. But I have no time for anger. I want to act.
I'm not just a girl from India, I am a girl from Earth and I'm proud to be so. I'm a student, innovator, environmentalist and entrepreneur. But most importantly, I'm an optimist. Lovely. No time for Thank you. anger because you want to act. Fantastic. Well done. क्या line है? Amazing line. Come. Thank you. Thank you. Beautiful choice of words. Guys, whatever she's saying, it's easier said than done. She's done it. And even there, you have that air of supreme confidence. Thank which you. which is good. It will stand you in good stead in the years to come. Thank you so much. Vinisha, wonderful meeting you. We've got something special. I'm going to request Ravi Shastri ji to please present this. Sir, this is the BYJU'S Young Genius Trophy. We're so proud of you. और इसी के साथ आपको मिलता है BYJU'S की तरफ से 1 साल का सब्सक्रिप्शन to the BYJU'S online learning program. Fantastic, Vinisha. So proud. Thank you so Thank you. much. Thank you very, very much. तो विनीशा भारत को भविष्य की तरफ ले जा रही हैं। हमारे अगले जीनियस भारत की प्राचीन कला के साज छेड़ेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद we'll be right back. मैं अप्रोक्सीमेटली 600 नोट्स के करीब बजा सकता हूँ 1 मिनट में। कोविड का ये काल जो है आपके लिए, आपके परिवार के लिए थोड़ा कठिन रहा है। जब हमारे पूरी फैमिली को कोविड हुआ था, हम सब पॉजिटिव थे। हाँ। और तब कोविड की वजह से दादा और पापा की जान गई थी। अब मैं उन्हीं का सितार बजाता हूँ और मुझे सितार को आगे जाके वर्ल्ड लेवल पर हर जगह बजाना है। रूस के साथ शुरू हुए युद्ध से यूक्रेन में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में बिहार के भी छात्र वहां मुसीबत में पड़ गए हैं। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे बिहार के कई जिलों के छात्र छात्राएं वहां फंसे हुए हैं। इसमें बक्सर की रहने वाली मेडिकल स्टूडेंट सुप्रिया भी यूक्रेन में फंसी हुई है। सुप्रिया ने यूक्रेन के हालात की हालिया तस्वीर बक्सर में रह रहे अपने पिता को भेजा है। वीडियो में सायरन की आवाज और लड़ाकू विमान साफ दिख रहे हैं। यूक्रेन में लोगों के घर के ऊपर से लड़ाकू विमानों को गुजरते हुए देखा जा सकता है। वीडियो से साफ लग रहा है कि वहां फंसे छात्रों की हालत क्या होगी। भरचकिया गांव में रह रहे सुप्रिया के पिता भी बेहद परेशान हैं। परेशान पिता कमलेश सिंह लगातार फोन के माध्यम से अपनी बेटी से संपर्क में हैं। इधर यूक्रेन में जारी संकट को लेकर बिहार सरकार वहां फंसे अपने लोगों को वापस लाने के लिए प्रयास कर रही है। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में विवादित जमीन को लेकर जमकर हंगामा हुआ। जमीन बेचने वाले और सरना धर्मावलंबी इस विवादित जमीन को लेकर आमने सामने आ गए। शहर के 1 एकड़ की एक प्लॉट को लेकर सरना धर्मावलंबी इस विवादित जमीन पर पहुंचे और जमीन पर की गई घेराबंदी को तोड़ते हुए वहां सरना झंडा गाड़ दिया, पूजा पाठ शुरू कर दी। तोड़फोड़ करने वालों से जब सवाल पूछे गए तो उनका कहना है कि ये जमीन पाहन की है और इस पर पूजा पाठ और खेतीबाड़ी की जाती है। शहर के जमीन माफिया उनके समाज की जमीन की प्लॉटिंग कर रखी है, जिसे उन लोगों ने तोड़ दिया है। वेलकम बैक टू BYJU'S यंग जीनियस। हमारे अगले जीनियस बहुत छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाले हुए। सितार वादन में सबसे प्रसिद्ध घरानों में से एक जयपुर सेनिया घराने के चश्मो चिराग सितार में महारत हासिल कर चुके हैं। अपने घराने की शान बढ़ाते ये हैं दिल्ली से अधिराज चौधरी। मेरा नाम है अधिराज चौधरी और मुझे सितार बजाना बहुत पसंद है। सितार मेरी लाइफ में आया जब मैं 6 साल का था। मैं अपने घर का 3rd जनरेशन सितार प्लेयर हूँ। हम जयपुर सेनिया घराने से है, जिसका चलन मसीद सेन जी ने करा। हमारे घराने का जो सितार होता है वो 17 फ्रेट का होता है। अधिराज अपने एज के हिसाब से काफ़ी अच्छा बजाता है, जैसे लगता है कोई एक्सपीरियंस कोई सितारिस्ट ऐसा अपना परफॉर्म कर रहा है। अधिराज के दादाजी जो थे पंडित देवू चौधरी जी, वो इंटरनेशनली रिनाउंड सितार माएस्ट्रो थे और उनको पद्मा भूषण से भी नवाजा गया था। और अधिराज के पापा जो थे पंडित प्रतीक चौधरी जी, वो भी काफ़ी इंटरनेशनली रिनाउंड थे। वैसे तो अधिराज बहुत शाई किस्म का बच्चा है, लेकिन जब वो सितार लेके बैठता है तो वो अपना एक अलग ही वर्ल्ड में चला जाता है।
अभी जैसे अधिराज के फादर भी नहीं रहे, उनके ग्रैंडफादर भी नहीं रहे, तो अधिराज ने अपने अंदर ठान लिया है कि उसका जो ये लेगेसी है, 17 फ्रेटेड सितार का जो ट्रेडिशन है हमारा, उसे वो आगे ले जाना चाहता है। जैसे कि मेरे दादाजी ने किया और मेरे पिताजी ने किया, और मुझे वर्ल्ड लेवल पर भी सितार बजाना है। नमस्ते अधिराज। नमस्ते जी। कैसे हो? ये बहुत अच्छा। आइए बैठिए। आप सितार बजा रहे हैं इतनी छोटी सी उम्र में? जी, मैं सितार बजाता हूँ जी, छोटी सी उम्र में, वो भी 17 फ्रेटेड सितार, जो हमारे ट्रेडिशन का सितार है, सैन्य घराने का। आप अपना सितार लाए हैं? जी, मैं अपना सितार भी लाया। तो आप जरा हमारे दर्शकों को और हमको जरा समझाएं, ये 17 फ्रेट सितार क्या होता है? जी, फ्रेट्स हो गए ये, जैसे अभी मैं 17 फ्रेट्स बजा के सुना देता हूँ। बाकी सितार में कितने फ्रेट्स होते हैं? बाकी घरानों में जैसे कि हो गए 19 फ्रेट, 20 फ्रेट, और कई कई में 21 फ्रेट भी। हाँ, एक मिनट में क्या आप कितने नोट्स बजा सकते हैं? मैं अप्रोक्सीमेटली 600 नोट्स के करीब बजा सकता हूँ एक मिनट में। एक मिनट में 600 नोट, यानी एक सेकंड में 10 नोट? जी, अप्रोक्सीमेटली। अरे बाप रे, जरा थोड़ा बजा के दिखाएंगे? अरे बाप रे, मेरे भाई एक बात बताइए, आप उसमें कोई भी क्लिप नहीं लगाते हैं, तो ये जो आप इतना स्लाइड करते हैं, ये दुखता नहीं है आपको? ये की शुरुआत में जैसे हम सितार बजाना शुरू करते हैं, इस उंगली के लिए हमें जब करना होता है एकदम स्लो में, कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करना होता है, जब तक हमारे उंगली की लाइन ना तैयार हो। और उंगली की हमें लाइन तैयार करनी पड़ती है, फिर हम अच्छे से बजा सकते। अगर हमने रियाज छोड़ दिया तो ये लाइन भी मिट जाएगा, और फिर अगली बार जब बजाएंगे तो कटेगा। तो उसमें दर्द भी होने लगेगा थोड़ा बजाते वक्त, अगर ये लाइन नहीं रहा तो। ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर कब की है बताइए अधिराज? जब मैं छोटा वो करता था, 3 से 4 साल का, हाँ। तब मुझे अपने दादाजी का सितार बहुत अच्छा लगता था, उसका टोन बहुत अच्छा लगता था। मैं ये चाहता था कि मैं उनका सितार बजाऊं, पर वो बोलते थे कि नहीं, आप मेरे सितार मत पकड़ो, आप तार हार तोड़ दोगे, ऐसे बोला करते थे। पर फिर भी मैं मानता नहीं था पहले। कभी ऐसा हुआ कि आपने उनके तार तोड़े? जी, कभी ऐसा तो नहीं हो, पर तार मैंने उनके बहुत बार डिट्यून कर दिए। कर दिए। मुझे 1-2 बार डांटा भी, पर उनकी डांट भी मुझे अच्छी लगती है जी। तो आपके हीरोज तो घर पे ही थे जी, आपके ग्रैंडफादर, आपके पापा, सब ट्रेनिंग उनसे ही लिए? ट्रेनिंग तो मैंने ग्रैंडफादर से ली और मैंने अपने पिताजी से भी ली। हाँ। आपको पता है इनका नाम रवि शास्त्री कैसे पड़ा? मेरा नाम है एक्चुअली रविशंकर, और मेरे पिताजी बड़े फैन थे पंडित रविशंकर, उसके वजह से मेरा नाम भी रविशंकर। ओ, ये ऐसे पड़ा। तो पंडित रविशंकर पर रखा गया है रविशंकर शास्त्री जी का नाम, जिनको हम रवि शास्त्री के नाम से जानते हैं। मैं टीम से गुजारिश करूंगा कि अधिराज का सितार वापस ला के रख दें। अधिराज, मुझे बताया गया कि कोविड का ये काल जो है आपके लिए, आपके परिवार के लिए थोड़ा कठिन रहा। और जी, उस वक्त जब हमारे पूरी फैमिली को कोविड हुआ था, हम सब पॉजिटिव थे। हाँ। और तब कोविड की वजह से दादा और पापा की जान गई थी। अब मैं उन्हीं का सितार बजाता हूँ। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ और मुझे सितार नहीं बजाना है? जी, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि मुझे आगे जाके सितार ही बजाना है, अपने घराने के ट्रेडिशन को आगे लेकर जाना है। बिल्कुल। और मुझे सितार को आगे जाके वर्ल्ड लेवल पर हर जगह बजाना है। आपके पास टैलेंट है, और ये उम्र में आप अगर ऐसे बजाते हैं तो और 5-6 साल के बाद आप दुनिया हिला देंगे। जी रवि सर, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। गुड लक। तो अधिराज, आप सितार इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि आपको घराने को आगे बढ़ाना है, या आप सितार इसलिए बजाते हैं क्योंकि आपको सितार बजाने में मजा आता है? जी, दोनों। जब मैं छोटा था, मैं उन सितार का साउंड बहुत अच्छा लगता था, तो उसके बाद मेरे दादाजी ने मुझे सितार सिखाना शुरू करा। उन्होंने कहा कि ये हमारा घराना है, 17 फ्रेटेड सितार का ट्रेडिशन है, इसको आगे लेकर जाना है हमें। फिर मुझे इसके बारे में पता चला, तो अब मुझे दोनों ही करना है। सितार का साउंड भी मुझे अच्छा लगता है और मुझे घराने का ट्रेडिशन भी आगे बढ़ाना है। सितार का ट्रेडिशन भी आगे बढ़ाना है। तो फिर अब मैं आपको एक मैसेज सुनवाता हूँ। उन्होंने इस यंग जीनियस मंच का जो एंथम है उसको कंपोज भी किया है, और म्यूजिकल बैकग्राउंड है इनका, परिवार वैसे ही है और इंक्लिनेशन उनका वैसा है, तो उनका आपके लिए बहुत खास मैसेज है।
I've just heard the clip of Adhiraj and he sounds very promising. For a boy who's 13 years old and plays sitar so beautifully, I can see it in his eyes that when he plays sitar, he plays it with so much passion and so much love that this truly will be his passion and his joy for the rest of his life. But for now, he's really making his gharana very, very proud. His father and his grandfather would be blessing him from heaven. I'm so touched to see that he continues his family's legacy. यह है सलीम मर्चेंट। अब हम अधिराज से पूछते हैं, इस मंच पर आप परफॉर्म करेंगे? जी। चलिए, तो आप तैयार हो जाइए, हम भी आपके लिए मंच तैयार करते हैं। वाह, बहुत अच्छे अभिराज। आइए आइए, यहाँ आइए। ये है बायजूस यंग जीनियस की ट्रॉफी है, तो आप सितार बजाने के साथ साथ पढ़िएगा भी। ठीक है, पढ़ना भी जरूरी है। पढ़ना भी जरूरी है, बिल्कुल। और इसके साथ आपको मिलता है बायजूस की तरफ से 1 साल का सब्सक्रिप्शन टू द बायजूस ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम। कंग्रेचुलेशंस, विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। एक जीनियस अपने संगीत से सबको मोहित करता है, तो एक जीनियस अपने आविष्कारों से आने वाला कल सुरक्षित करती है। विश्व में भारत देश का परचम फैलाते ऐसे ही और भी जीनियसेस आएंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए जिंदगी की किताब में कुछ नया लिखिए, हमारे यंग जीनियसेस जैसा कुछ आप भी कीजिए। नमस्कार। तो 2 बार MIT ग्लोबल एपाथॉन जीत चुकी ये विजेता जोड़ी आयुष शंकरन और जसित नारंग। कौन सी उम्र में सीखा तुम लोगों ने? 9-10 साल। हमें पीपल्स चॉइस में फर्स्ट मिला फॉर 2 consecutive years और जजेस चॉइस में 4th मिला। अनबिलीवेबल। 10 साल का एक बच्चा इंडिया और श्रीलंका के बीच बनी हुई पार्क स्ट्रीट को पार कर गया। ये है जय जसवंत। Are you satisfied? Not. He needs to go more. Forward, na? I want to make him an Olympian and a defense officer. Let him do service for India. Salute आपको।